Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, in the series of Principles of Management, today we will be studying Principle of Equity. The word equity means equality, equal treatment. Okay, let us see what the principle states. According to this principle, there should not be any discrimination among the employees on the basis of religion, language, caste, सेक्स, बिलीफ और नेशनलिटी। कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा पुरानी मूवीज़ वगैरह में इस तरह का होता है, लाइक जो मज़दूर काम कर रहे हैं तो उसमें जो मेल पर्सनस हैं उनको ज़्यादा सैलरी देना, जो फीमेल मज़दूर हैं उनको कम सैलरी देना। तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में। और या फिर जो लोकलाइट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, जो किसी और स्टेट से आए हैं तो उनको अब्यूज़ बोलना या उनको टॉन्ट बोल देना, कमेंट करना। सो दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी कोर्डियल रिलेशनशिप्स तभी क्रिएट हो सकती हैं जब हम अपने माइंड में इक्वलिटी का फीलिंग लेके आएंगे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। मेनली इट अप्लाइज ओवर द मैनेजमेंट, बट इन द peer group also, in the at the employees level also it should be there. This principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers towards workers, that is all the workers. जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी सबॉर्डिनेट्स एक मैनेजर के अंडर में हैं, मैनेजर उन सब के लिए काइंड एंड जस्टिस बिहेवियर प्रिटेंड करे, काइंड एंड जस्टिस बिहेवियर रिफ्लेक्ट करे। Nowadays, as we all know, by multinational companies का ज़माना है. So in the multinational companies, people of various nationalities work together in a discrimination free environment. और अगर वहाँ कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है दैट विल नॉट बी अ पीसफुल एनवायरनमेंट, इट विल बी अ हार्मफुल सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन in the situation of violation of principle of equity. The principle of equity just states equal treatment to all the employees. अच्छा हाँ, equal treatment का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि there should be a equal salary to the PN and the general manager. There should be a equal salary to the worker and the CEO of the organization. No, absolutely not. But principle of equity states that equal salary for the equal job. If two persons are there, for example a production manager and marketing manager, obviously both the managers are on the same post, were appointed on the same date, so having the same experience, on the same post, on the same level, and working hours are also the same, so both must be given equal salary. Principle of equity just states equal treatment for equal work, just and fair treatment, respectful treatment for all the employees. Let us take one example. Workers performing similar jobs should be paid same wages. This is stated by principle of equity. No discrimination means ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी, दो को आपने ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोस्ट पे अपॉइंट किया, दोनों सेम वर्किंग आवर्स हैं, दोनों के सेम एफिशिएंसी लेवल है, फिर भी आपने साल के एंड में एक पर्सन को इंक्रीमेंट दे दिया और दूसरे को इंक्रीमेंट नहीं दिया, दिस विल बी अ वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल जॉब्स, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल द वर्कर्स. लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस. अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट सभी वर्कर्स को देंगे, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन and motivation level among the employees. Obviously the employees will feel belongingness towards the organization, their satisfaction level will improve. And secondly, cordial relations between the employees and management. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उनको पूरा इक्वली ट्रीट करता है सभी से. सो ऑब्वियसली इट विल ब्रिंग अ गुड cordial relationships among the employees and the manager. And if this principle is violated in the organization, then it will result in decrease in satisfaction among the employees. Motivation level will also decline.
so it will be a bad situation for the organization. And unhealthy relation between the employees and management, obviously there will be a sort of distrust among the employees and management. So I hope आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है. इक्विटी मींस इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़. फिर भी अगर कोई डाउट बचा है एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखें, और अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो आप कमेंट में लिखें. आई विल जस्ट रिप्लाई टू यू. एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी डायरेक्टली ऑन माई मेल आई डी इज़ कुणाल सिंगल 85, जो आपको यहाँ पे गिवन है. और भी अगर कोई डाउट होता है तो दोबारा से आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी. अकाउंटेंट्स इन बिजनेस ट्रीज के वीडियोस डेली मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो डेली आप लोगों को भी पढ़ाई करती रहनी चाहिए. रिमेंबर, देयर इज़ अ लॉकडाउन पीरियड फॉर कोरोना, नॉट फॉर स्टडीज़.